یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں. کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے, قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے, کیا کیا نہیں کیا. 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے. لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں, اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے. چنگیز آیا, ہلاکو آیا, جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, آپ ان مسجدوں میں آئے, کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی, کبھی خدا کا کوئی چہرہ, کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے, اور ہم بتا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو, جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا, وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات, یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات, جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں. فجر میں, مغرب میں, عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے, سن تو لیتے ہوں, جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا, سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے ہیں, سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پیجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے, امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے, امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے, ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ بہت پرانی ہو گئی سورہ, کوئی نہیں تو پڑھو. کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے, کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو, ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی, نیا کچھ لے کے آؤ. نہیں, بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے, وہی پڑھو. کیوں آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو, بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی, 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل کر کے چاہیے, نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا, مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام, اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں ہے. تیسری ایک اور چیز, تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پردادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے, ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنے ابا سے بھی نہیں پوچھا, مولانا سے بھی نہیں پوچھا, بہت سال ہو گئے, کوئی نیا کلمہ تو لاتے ہیں, تھپڑ لگے گا کہ نیا نہیں, اس میں یہی پرانا ہے. بلکہ حالت یہ ہے دوسرا کوئی ڈائلاگ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی بھی چیز ہو, 4 مہینے 6 مہینے چل سکتی ہے, سال بھر 2 سال, اس کے بعد وہ سننے کو دل نہیں کرتا. آدمی چاہتا ہے کہ پرانا ہو گیا, اب کچھ نیا سناؤ. کلمہ طیبہ کو کوئی بھی امتی یہ نہیں کہتا پرانا ہو گیا. ارے 70,000 بار بھی پڑھیں تو اس میں جدت اور لذت اور آتی, کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ایسی چیزیں تمہارے پاس ہیں, تمہارے پاس ہیں. یہ جمعہ کی جماعت, یہ قرآن کی حقانیت, یہ کلمہ طیبہ کی جدت جو ہر زمانے میں ہے, کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں, میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, بولا ہے کتابیں, اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے نسخے ہیں, کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے, 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل, بائبل, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں, ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں بھی ہیر پھیر, ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے. لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک, ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ, قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, وہ ناس پر ہی ختم ہوتا ہے. فرقے بہت ہوئے دین میں, اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے, لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا. قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی, وہ آج بھی وہی موجود ہے. اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا, کوئی ایک پارا تو چھوڑو, ایک سورہ تو چھوڑو, ایک حرف بھی نہیں بدل پایا, زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے. 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے, اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا. اے مسلمانوں, میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں, اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو, کسی کے پاس نہیں مل سکتی. پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو؟ ہمارے پاس کچھ
कुछ नहीं है। इतनी बड़ी दौलतें जिसके पास है उसे सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जीना चाहिए। दुनिया में सर उठा करके जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दी हुई ये सारी निशानियां तुम्हारे पास मौजूद है। चलो हम कहानियों, जिसको ये लोग कहते हैं कहानियां हैं, गौसे पाक की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, गरीब नवाज की करामत सुनाओ तो कहें कहानी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाकया सुनाओ तो कहते हैं कहानी है। तुमको ये लगता है पुरानी बातें कहानियां हैं तो ठीक है, लेकिन जो कुरान आज तक मौजूद है इसका जवाब तो ला करके देते। ये जो कुरान है ये तो कहानी नहीं, तुम्हारे पास है। और कुरान जगह जगह चैलेंज करता है। अल्लाह खुद फरमाता है फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर हिम्मत है तो इसकी तरह की एक सूरह बना करके लाओ। और ये 1400 साल पहले किया हुआ चैलेंज है। आज तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में कहां तक जा चुकी है। पेट्रोल मिसाइल और मिनटों में इधर से उधर सफर करने वाले इन सारे टेक्नोलॉजी के बादशाहों से क्यों नहीं पूछते कि एक कुरान क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं लाए? मेरे अजीजों, अल्लाह का ये वादा है। अल्लाह फरमाता कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान ला यातूना बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल पाक, आप कह दें सारे इंसान मिल जाएं, सारे जिन्नात मिल जाएं, सब मिल करके एक दूसरे की मदद करके ऐसा कुरान बनाना चाहें, अल्लाह फरमाता है तब भी वो नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। अल्लाह का वादा है। तो आज तक जो इस किताब का मिसल नहीं ला सका वो किताब तुम्हारे पास है, वो कुरान तुम्हारे पास है। मुझे बताओ इससे बढ़कर के दौलत और क्या है? इससे बढ़कर के दौलत क्या है तुम्हारे पास? ये जिंदा जावेद मौजज़े हैं। अब ये सब चीजों के बाद फिर मैं आपसे आखिर में इतना कहना चाहूंगा, जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसको आला हजरत की बात सुनना चाहिए। आला हजरत क्या कहते हैं? सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया। सोना पास है तेरे, इसका मतलब क्या है? गोल्ड। सोना पास है, सोना बन है। बन कहते हैं जंगल को। सुना जंगल सुना है ना, खाली पड़ा हुआ जंगल है जहां दरिंदे, उसको सुना जंगल कहते हैं। यानी सोना पास है तेरे, गोल्ड पास है, और जंगल वाला राज है। और ऐसे वक्त में सो करके रहना ये तो जहर है। उठ प्यारे, ऐसे वक्त में सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मधी निराली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 लफ्ज आला हजरत ने कहा। ये दुनिया कैसी है मालूम है? ये कातिल है, ये डाइन है, ये शोहर कुश है। ऐसी औरत के ये 3 लकब है। कातिल मतलब मर्डर करने वाली, और डाइन कहते हैं वो औरत जो रोज शोहर बदलती हो, रोज शोहर बदलती हो, उसको डाइन कहते हैं। ये औरत के लिए गाली है। और शोहर कुश किसको कहते हैं? शोहर बदलने वाली तो डाइन है, लेकिन अपने ही शोहर को मार देती हो वो शोहर कुश है। दुनिया को आला हज़रत कहते हैं तीनों चीजें ये दुनिया के अंदर है। जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसके पीछे भागता है, ये दुनिया उसको मर्डर करती है, उसका कत्ल करती है और फिर बदल लेती है। दूसरा आ जाता है, आज लाख रुपए तुम्हारे जेब में, कल ये पैसे किसी और के जेब में। ये रोज बदलती है अपना आशिक, और फिर जो इससे इश्क करता है उसको मार भी डालती है, मार डालती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान 1 दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौम से हैं? आप चोर कौम से हैं? आपका क्या खौफ है? किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हैं हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी
चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े टीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या फिस्क और फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का ये मिजाज है, हम यही ऐलान करना चाहते हैं। अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, आप जिस तरीके कार को जो नौजवानों ने आज पकड़ रखा है उससे तौबा कर लें। ये नशा का माहौल, ये खराबियों का माहौल, ये जो दौर दौरा चल पड़ा है, ऐ नौजवानों, ये तुम्हारी जिंदगी को सेब नहीं देता। ये शिवा उम्मत मुस्तफा का नहीं है। कुरान में जिस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत, क्या वो बेहतरीन उम्मत आज नशा के अड्डों पर बैठ सकती है? क्या वो बेहतरीन उम्मत ताश के पत्तों पे अपनी जिंदगी गुजारे? क्या वो बेहतरीन उम्मत रात भर ये सारे सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करे? ये खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने तुम्हें कुरान में अता किया, उसका पास व लिहाज तो रखो। और तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा, इतना महफूज रखा, कसम रब्बे जुल जलाल की मैं आपको बताऊं, अभी भी हम जुमा पढ़ेंगे आपकी पेशानियां सजदे में जाती हैं, सबकी पेशानियां सजदे में जा रही। एक बात का ख्याल रखना, इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो रिस्क की है, खाने की है। खाना खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। माल ना हो, कपड़े ना हो तो भी जी लेगा, घर ना हो तो भी जी लेगा, खाने के बगैर नहीं रह सकता। खाना तो उसके लिए, ये तो पेट्रोल है, बगैर उसके इंजन चले कैसे? लेकिन आपने कभी महसूस किया, बकरी को भी खाते हुए देखा आपने, बैल को भी खाते हुए देखा, भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा। जानवरों में अक्सर और बेशतर, अक्सर हत्ता के शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिस्क के सामने भी झुकने नहीं दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिस्क है। रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिस्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं, 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह
जगह झुकने नहीं देता, तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसे ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।